looking for variation in the data, and we are looking at the shape of data. Okay. These are the three basic characters that we must assess for the data to be able to derive better meaning for the same. So what is central tendency data? मतलब क्या चीज हम लोग उसमें मेजर करते हैं? अब पढ़ेंगे. What is central Sorry. tendency? Okay. So the term central tendency itself is giving you a lot of answers. It says central tendency, which means that the data will always have a tendency to move towards its center. तो अगर मैंने पिछले 50-60 दिनों का आपकी गाड़ी का माइलेज नोट किया है, and if I have captured the central tendency of your data, mean या median, कल सुबह जब मैं आपकी गाड़ी में चाबी लगाऊंगा, I am expecting that the mileage of your car will be close to, not exactly, but close to the central tendency of your data. And when we say it's central tendency, there are three basic measures of central tendency. One that is commonly referred to as mean, the other commonly referred to as median, the third commonly referred to as mode. एक स्टेप पीछे चलते हैं. वी सेड दैट जब कभी भी आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस इज एसेंशियली अबाउट वेरीफाइंग थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. ए, डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा का वेरिएशन और डेटा का शेप. द टर्म सेंट्रल टेंडेंसी टू मी मीन्स दैट डेटा का एक प्रॉपर्टी है that data हमेशा अपने सेंटर की तरफ भागेगा. So when I am a businessman or an ordinary person, and if I have been careful in capturing data, let's say I work for Big Bazaar, and I am the one who has to decide कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोक्योर करके रखूं. Let's say I have a small part in Big Bazaar, and I am required to sell ration in that part of Big Bazaar. अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितना राशन प्रोक्योर करके रखूं. लेट्स स्टार्ट विद राइस. अब मुझे ये जानना है कि मैं कितना राइस खरीद करके रखूं अपने स्टोर में. यू मस्ट रियलाइज दैट अगर मेरे पास राइस की क्वांटिटी कम पड़ गई तो मेरे कस्टमर्स वापस चले जाएंगे. अगर ज्यादा हो गई तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, एंड आई विल बी पुशिंग अक्रॉस सम ओल्ड स्टेल प्रोडक्ट्स टू माय कस्टमर. और बिजनेस एक बेसिक थॉट पे चलता है दैट यू आर एबल टू प्रिडिक्ट टुमारो. उसके लिए एक मेजर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी. सो व्हाट वी हैव डन, लेट्स से इज लास्ट 60, 70, 40 डेज का हमने डेटा कैप्चर किया. हमने उस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी निकाला, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला. वी आर सेइंग दैट अगर मुझे आपके डेटा का मीन मालूम है या मीडियन मालूम है, कल सुबह भी अनलेस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंस, कल सुबह भी आपका डेटा अपने मीन की तरफ भागेगा. लेट्स से वी हैव बीन एबल टू सेल 50 kilograms of rice every day. सो कल सुबह जब मैं अपना शॉप वापस स्विच ऑन करूंगा, what is the expected sales of Big Bazaar? The rice counter, it should be around 50 kilograms. You guys with me so far? You guys with me so far? Yes, Pranay. Now we say that, now we are saying that central tendency को measure करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. एक mean, which is the usual way of us doing most of our calculations. Mean is nothing but the arithmetic average of data. Mean is the most commonly used measure of central tendency that we have in our day-to-day lives.
So this data that you have in front of you right now, this data comes from a biscuit manufacturing company. This is the quantity of production every day. तो अगर मैं इसको for convenience purposes किसी और शीट पे लेके चला जाता हूँ, and all I'm doing is calculating average. So you are getting the mean of your data. It seems कि इस डेटा में टोटल भी पड़ा हुआ है. So on an average, we are producing about 271 kilograms of biscuit every day. This is the typical arithmetic average that we were talking about. Mean is the most common, like we are saying, of the measures of central tendency. लेकिन mean के साथ एक बहुत बड़ी disability है that it kind of gets impacted by extreme data points in your data. And to put across this point, we were discussing that एक बहुत बड़ी disability है mean में कि वो बहुत जल्दी impact हो जाता है by extreme data points. And to put across this story, I often quote a story of a particular suburb in London. एक अजीब सी story है that London के एक suburb में 10 families रहा करती थी, 3, 5, 7, 9 and 10. Each family with an income of £1,000. So when the social departments of government of UK wanted to find out whether these people were poor or doing okay, वो इस डेटा का आपके इनकम का एवरेज काउंट करते थे और एवरेज कैलकुलेट करके उनको पता चला दैट everyone in this area is around £1,000. उसी के अनुसार सारे सोशल बेनिफिट्स, अदर लेवाइज, अदर चार्जेस गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखा था. Subsequently, after some time, वहाँ एक बहुत बड़ा piece of land vacant था, and Mr. Lakshmi Nivas Mittal decided to buy that land and come in with 46.5 billion pounds. So you need 10, 100,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 100 crore. एक लक्ष्मी निवास के आने से now look what has happened to the average or the mean. Now the same government department, when assessing mean, will decipher that इस इलाके में सिर्फ बिलियनर्स रहते हैं, which is absolutely ridiculous. मीन की एक डिसेबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट से बहुत जल्दी इंपैक्ट हो जाता है. एंड इवन इफ यू हैव 1 or 2 एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स एरोनसली या अदरवाइज, तो भी आपका डेटा मिस रिप्रेजेंट करने लगेगा आपकी स्टोरी को. यू गाइस विद मी? Yes, Pranay. Yes, sir. I remember another story. मेरे पास एक टाइम पे सारे सेल्स लीडर्स हुआ करते थे as a batch. In a casual conversation, I was told that the process deployed for sales is that उनकी सेल्स टीम छोटे छोटे शॉप्स विजिट करती थी. वहाँ सिनेमा के, मूवी के CDs वो छोड़ के आते थे. And then these guys, these small shops would end up selling those cinema CDs, and जो approximate sale था would vary around 150 to 175. This was the usual performance of these folks, these small shops. So जब target setting की बात आ रही है तो again हम mean निकाल रहे हैं equal to average. So on an average, we are looking at 161 CDs sold by these shops.
बट क्या हुआ एक बार, वन दिवाली, HCL एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड दैट एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देती थी ऑर्गेनाइजेशंस दिवाली में, दे डिसाइडेड दैट उस दिवाली में वो मूवी सीडीज का एक बंडल अपने एम्प्लॉयज को देगी. So HCL ended up buying 28,000 CDs on one day. Now look at what this one day will do to your numbers. God bless us. Suddenly, because of one special behavior, your data is now saying that the average number of CDs sold by these shops every day is 980. So leaders sitting at will now push their sales team to get 980 CDs sold by each shop every day, which is outrageous. These poor guys have been able to sell between 150 to 170. तो ये अपने आप को पुश भी करेंगे तो 200 पहुंचेंगे, और 200 के बाद भी बिकॉज आवर मैथ्स इज रॉन्ग, आप उनको बताओगे कि दीज शॉप्स आर पुअर परफॉर्मर्स. यू गाइस विथ मी? एक स्पेशल बिहेवियर, जब हम क्वालिटी का डेटा, एरर का डेटा, कलेक्शंस का डेटा, हैंडलिंग टाइम का डेटा, किसी भी चीज का डेटा कैप्चर कर रहे हैं और उसमें मेरे पास कोई भी स्पेशल एलिमेंट है, तो उस स्पेशल एलिमेंट ने जो मीनिंग हम डिराइव कर रहे थे, व्हाई डिड वी नीड द मीनिंग टू दैट डेटा? ए, बिकॉज हिस्ट्री we want to compare against our targets and see, evaluate of our performances. हम देखना चाहते हैं कि concerned teams कितना अच्छा काम कर रही हैं. That's the primary use of history. And because history will be used to extrapolate and talk about future. तो ही कारण है. एक that उस हिस्ट्री को यूज करके हम परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर रहे हैं. We are saying whether team has been able to meet its target. When Anuj and his team look at quality scores and report out quality scores, I am comparing the quality scores to their targets, and I'm being able to decipher कि मेरी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है. So एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस असेसमेंट में मुझे डेटा हेल्प करता है. बट द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज आल्सो दैट इस डेटा को यूज करके हम टुमारो प्रेडिक्ट करते हैं. और अगर आपके डेटा में एक भी लक्ष्मी निवास मित्तल फैक्टर है, एक भी दिवाली का डेटा है, गॉड ब्लेस यू, इट विल थ्रो अप कंप्लीटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. यू गाइस विद मी? राइट सर. इसीलिए मीन हमेशा डिस्करेज किया जाता है एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड दैट आपके डेटा में वेरिएशन बहुत कम है, आप मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं इस्तेमाल करते हैं. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेट? द ऑल्टरनेट इज अ वैल्यू रेफर्ड टू एज मीडियन, व्हिच इज नथिंग बट पोजिशनल एवरेज ऑफ द डेटा. डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, जो सेंटर का डेटा पॉइंट होता है उसको हम मीडियन कहते हैं. Look at what median has before Lakshmi Nivas Mittal. After Lakshmi Nivas Mittal. Doesn't change. One Lakshmi Nivas Mittal in your data hasn't changed the meaning of your center. कल भी सेंटर मेरा 1000 पाउंड था, आज भी सेंटर मेरा 1000 पाउंड है. Let's look at the story around equal to average बिना दिवाली डेटा को ऐड किए हुए.
सो स्पेशल बिहेवियर के बाद भी मेरा मीडियन is only at 160. So as a leader, if you expect your teams to be able to get you 160 CDs or thereabouts being sold by each shop, wrong nahi hai. But if you were to expect your teams to be able to get you every shop to do a performance around a 980, it's ridiculous. So mean हमेशा बहुत dangerous maths है if there is high variation in the data. So unless you have some statistical method कि आप पहले से normality कर पाते हो, there is a method called normality test which verifies whether data is settled in a pattern or not. अगर आप पहले से वो statistical test नहीं कर रहे हो तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हर डेटा का median इस्तेमाल करेंगे instead of mean. Is the message very very clear to all of you? या मीडियन में सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को रीच करना मैंडेटरी एक्सेल वगैरह यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक्सेल खुद कर लेगा. ओके. अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं, सो लेट्स से दिस डेटा इटसेल्फ, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करा, आई एम सेइंग प्लीज सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. Now I have sorted the data and I look at how many data points do I have. Number of data points. Number of data points count is 34. Okay. So 34 का आधा 17. So 17 और 18 का मैं एवरेज ले लूंगा. Okay. Okay. बस. You guys with me so far, everyone? Mean is absolutely ridiculous to be able to use. Sunny, can you repeat the last point once again, please? So I am saying that unless आपको बहुत clarity है डेटा का, हमेशा कोशिश करिए कि मीन न यूज करके मीडियन यूज करने लगे आप अपने मेजर और सेटल टेंडेंसी के लिए. Only in the case where we have the high variation points available, or in all the cases? I will go to the extent of saying when you don't know, go for median. Okay. मीडियन मीन तभी इस्तेमाल करो जब बहुत एक्सप्लिसिटली उसकी नीड आई है, अदरवाइज forget Median. mean. Perfect. The third measure of central tendency is the mode. जब आपके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है तब आप मोड इस्तेमाल करते हैं. लेट्स से आई एम लुकिंग एट रोलिंग फॉर डाइस. मुझे मालूम है द ऑप्शंस अवेलेबल आर राइट फ्रॉम 1 to 6. डाइस अगर मैं रोल करूंगा तो 6 ही ऑप्शन है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. अगर मैं एक क्रिकेट टीम का असेसर हूं, सो मुझे पता है कि एक बैट्समैन के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है रन बनाने की. ईदर ही कैन स्कोर अ 0 और अ 1, 2, 3, 4, 5. सो मेरे पास जब कभी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, then I look at another measure of settled tendency referred to as mode. This is about the frequency of occurrence of data point. If you see the example that is available here, a cricket analyst has collected data and for a particular batsman, and he's found out that this person has scored 0 on 120 balls. Once he scored 12 times, 2 has occurred 14 times, 3 has occurred 19 times, 4 has occurred 100 times, 5 has occurred twice, 6 has occurred 100 times. So सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा पॉइंट अकर हो रहा है? Evidently 0. Great, everyone? Because 0 is occurring 120 times, इसलिए हमारे डेटा में 0 is the mode. Simple thought, everyone? Yes, sir. Can please? Didn't get it. हाँ, exactly. No worries. अब ये देखो डेटा, मेरे पास
एक डाइस का डेटा है और मैं देख रहा हूं दैट व्हेन आई हैव रोल्ड द डाइस सेवरल टाइम्स, 1 12 टाइम्स आया है, 2 14 टाइम्स आया है, 3 19 टाइम्स आया है, 4 85 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है, 6 42 टाइम्स आया है। तो मोड इसेंशियली इज अबाउट कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है। In our example, we see that 4 has occurred 85 times, correct? Okay. Yes, Pranay. तो इसका मतलब 4 मेरा मोड हो गया। Simple. Okay. Let's look at another example. Look at this example here. This, when you look at, मेरे पास 1 has occurred 12 times, 2 has occurred 14 times, 3 has occurred 92 times, 4 has also occurred 92 times, 5 has occurred twice, 6 has occurred 25 times. तो इसका मतलब 3 and 4 are the most frequently occurring data points. यही है। बिल्कुल। So आपके पास 3 and 4 both become your mode, और कभी भी आपके डेटा में 2 मोड एग्जिस्ट करते हैं तो उस डेटा को हम बाई मोडल डेटा कहते हैं। Okay. नीचे देखो, उसके नीचे का एग्जांपल, कैन यू गाइस गिव मी द मोड ऑफ द डेटा? So 3, 4, and 5 all have the same 25. So 3, 4 and 5 3 4 and all have 25 occurrences, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 3 4 5 is the mode of the data, और because हमारे पास 3 मोड हैं डेटा में, we will call this data as trimodal. Okay. Okay. थॉट क्लियर है? बिल्कुल Right. Clear. I just didn't get the first example that you gave. That was of the batsman. If you can tell me that once again. हाँ जी साहब, ये क्रिकेट का एक एनालिस्ट है, आप अनुज वर्क फॉर टीम इंडिया एंड दे आर असेसिंग अ न्यूअर बैट्समैन दैट हैज कम इनटू द ऑस्ट्रेलियन टीम। मुझे इस आदमी के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करूं? तो आपने क्या किया, पिछले 10 12 15 मैचेस का इसका डेटा कैप्चर किया और आपने देखा दैट दिस मैन हैज नॉट स्कोर्ड अ सिंगल रन फॉर 120 डिलीवरीज, ही इज टेकन वंस 12 टाइम्स, he's taken 2s 14 times, 3s 19 times, he's hit 4s 100 times, 5 only 2 times, 6s 100 times, 7 is in one instance. तो आप इस मोड यहाँ क्या हुआ, हाईएस्ट अकरेंस है कि बोले 0, करेक्ट? भूल जाओ तो 0 एग्जिस्ट करता है। अब मुझे बताओ क्या है? 4 and 6 it would be bimodal. करेक्ट, Bimodal. Right. और कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अनुज? तो ये क्लियर है कि ये आदमी सिर्फ चौके छक्के मारेगा। So mostly 4 and 6s, yeah. हाँ, so you will have to prepare for him accordingly. Right. So when we started our discussion, we said that हम डेटा का 3 बिहेवियर देखेंगे. One that we refer to as central tendency, the other that we refer to as variation. वेरिएशन मेजर करने के 2 तरीके हैं. Option 1, we look at the variation of the data vis-a-vis the center. So मैंने किसी डेटा का मीन निकाल लिया और हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मेजर कर लिया. Let's say मेरे पास कोई डेटा है and I have calculated the mean of that data. I have a data which has a mean of 5 और मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5. तो मैं हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, 1 से 5 का डिस्टेंस, 2 से 5 का डिस्टेंस, 3 से 5 का डिस्टेंस. एक तरीका तो हमेशा डिस्टेंस ऑफ डेटा फ्रॉम द सेंट्रल है.
The other part of the story is when we are looking at the positional information, much like the median that we studied a little while ago. So when we study positional information, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम. Minimum or the lowest data point. So let's call it the 0th position. Calculated very simply as equal to min. Select the data. Another, which is max, which is the 100th position, calculated very simply as equal to max. Then you have something that is referred to as quartile. Like the term itself is saying, quartile ka matlab quarter, 25%. So 25th position is mentioned as quartile number 1 or Q1, calculated as quartile. Select the data. अगर first quartile निकालना है तो comma 1. अगर ये तो समझ में आ गया कि 50th पोजीशन मेरा मीडियन है, सो इक्वल टू मीडियन. And finally, you have a quartile 3, which is the 75th position, calculated as quartile. Select your data, comma 3. So, अगर किसी प्रोसेस के असेसमेंट में हम बैठे, let's pick up some actual data. This is the production का data. Let me take it to a different sheet. Let's say all of us are new to this business process और हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है. तो हमने स्टार्ट किया, we decided कि पहले सारा इंफॉर्मेशन कंपाइल कर लेते हैं. So we said, what is the minimum production that has happened? I said equal to min what is the highest production that we've done, equal to max. वो टोटल पड़ा हुआ है, just one second. What is my quarter number 1, Q1? फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल का? Quartile 1. Equal to quartile. Select the range of your data, comma 1. Then I have my median, which is a central tendency, but because एक साथ लिख रहे हैं इसलिए ये भी मेरी हेल्प करेगा. And then I have my quartile 3, which is using a formula equal to quartile. Select your data, comma 3. Essentially ये करता क्या है कि आपका डेटा को ये 25% के buckets में तोड़ देता है, which means that 25% of the time my production has happened between 200 kilograms to 245 kilograms. You guys with me? Minimum से quartile 1 हमेशा fixed 25% होगा. Quartile 1 से median तक हमेशा 25% होगा. Fixed. Nothing will change this. Median से quartile 3 same 25%. Quartile 3 say maximum same 25%. So if I know the number of data points or n,
मेरे पास टोटल कितना डेटा पॉइंट है? टोटल डेटा पॉइंट जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 208। इसका मतलब मिनिमम से क्वार्टाइल 1 में हमने कहा 25% ऑफ द डेटा, विच मीन्स इक्वल टू 208 divided by 4. So there were 52 days जब मेरा प्रोडक्शन 200 किलोग्राम से लेके 245 किलोग्राम तक हुआ है। तो guys, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सर 52 कैसे आया है? n मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो यहाँ 208 है, ओके, डिवाइडेड बाय 4। ओके, और हम ये कह रहे हैं कि क्वार्टाइल क्या कर रहा है कि आपके डेटा को 25% के बंडल्स में तोड़ दे रहा है। ओके, तो 208 डिवाइडेड बाय 4 essentially is 52। तो मैंने हर बकेट को 52 डेटा पॉइंट्स में क्वार्टाइल मेरा तोड़ देगा। सो मिनिमम से क्वार्टाइल 1 में 52 डेटा पॉइंट्स होंगे, क्वार्टाइल 1 से मीडियन में 52 डेटा पॉइंट्स होंगे, मीडियन से क्वार्टाइल 3 में 52 डेटा पॉइंट्स होंगे, क्वार्टाइल 3 से मैक्सिमम के रूप में 52 डेटा पॉइंट्स। यू गाइस विद मी? ओके। तो आपको पता चल गया कि कितनी बार ऐसा हुआ है दैट योर प्रोडक्शन हैज बीन बिटवीन 299 किलोग्राम टू 365 किलोग्राम। तो आपने कहा 25% डेज और 52 डेज। ओके, यहां मेरा मीडियन इज 279, विच मीन्स दैट 279 से लेके 299 कितना डेटा पॉइंट है? बोले 52। फिक्स्ड है, ये क्वार्टर है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। यू गाइस विद मी? Yes, right. Let's take another example. This is a machine that we have. नाम उसका मशीन ए रखा हुआ है इन लोगों ने। क्यों करिए, आप इस मशीन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में हम कह रहे हैं हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे साहब, पहले जो बेसिक चीजें हैं हम वो सारी बेसिक चीजें कर लेंगे। इस बार एक्सेल से करने की बजाय मैं इसको मिनट ऐप से कर रहा हूं। मैंने मशीन ए पे क्लिक कर दिया। अगर आपको दिख रहा हो तो मिनिमम 0.45, फर्स्ट क्वार्टाइल 1.36, मीडियन 1.82, थर्ड क्वार्टाइल 3.19, मैक्सिमम 9। दिस इज द ब्रेकेज इन किलोग्राम्स। n is equal to 208। इसका मतलब हर क्वार्टर हमारे पास 52 डेटा पॉइंट्स का होगा, करेक्ट? विच मीन्स मिनिमम से फर्स्ट क्वार्टाइल तक क्या हुआ है? सो इस मशीन से बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा हुआ कि 0.45 से लेके 1.36 किलोग्राम तक हमारा ब्रेकेज हुआ है 25% टाइम और 52 डेज। 52 डेज my breakage has been between 1.36 to 1.82. 25% of the time my breakage has been between 1.82 to 3.19, and 25% time it has been between 3.19 to 9.12. ज्यादा टूटना खतरनाक है, इसलिए थर्ड क्वार्टाइल टू मैक्सिमम सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। करेक्ट एवरीवन? तो मैं थर्ड क्वार्टाइल टू मैक्सिमम का डेटा दोबारा डीप डाइव करके देखूंगा। व्हाट द हेल हैज हैपेंड, व्हाट वर दीज डेज, हु वर द पीपल मैनेजिंग द शो, ऐसा क्या कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था इस टाइम पे। I will further analyze the third quartile and the maximum. That is the strength of data. बिना आपके gut feel के, बिना messing up by virtue of your experience,
आप सीधा सीधा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास डेटा है. You guys with me, everyone? Yes, Pranay. Yes, Pranay. I am attaching. मैं आपको WhatsApp पे डेटा भेज दूं या यहाँ डेटा भेज दूं? WhatsApp, Pranay. WhatsApp. Is WhatsApp. there anyone who is not on WhatsApp, that group that we have created? I am sending you the same data that we've been using, and I would want you to calculate these basic numbers once, so that we are sure that we understand this, and then we will. In fact, I've sent you two data sets through WhatsApp. एक बार मिल जाएगा तो प्लीज लेट मी नो. Received, Pranay. God bless. तो प्लीज एक काम कर लो मेरा, वो जो डेटा मिला है उसमें से किसी एक थ्रेड का सारा कैलकुलेशन आपको करना है. मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम, ये जो सारे कैलकुलेशंस हमने अभी एक्सेल पे करे हैं. You will also need to do the same thing for me. Is that fair? Practice होना बहुत important है. Right, Pranay, it will be done. Oh. Sure. ये अभी करना है सर? अभी? Yes, sir. Fair. Yes. Yes. Better होगा प्रकाश. While I am around, आप ये कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा comfort हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है. Pranay, but right now it's not possible for me to do it. Can you also just send it to the email ID, please? Because from WhatsApp, then. No worries. आप एक काम कर दो, chat box में अपना email ID post कर दो, please. ये डाटा जो भेजा आपको कहाँ पे भेजा था? अभी मेरे को तो कुछ रिसीव नहीं हुआ. WhatsApp पे भेजा था. WhatsApp पे नहीं आया सर अभी मेरे पास. इट्स पॉसिबल कि आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं है. आप भी अपना ईमेल एड्रेस वहां टाइप कर दो. ईमेल एड्रेस की मेल भेज दो. एंड आई एम नॉट सेंडिंग इट टू यू थ्रू WhatsApp. आई एम सेंडिंग इट टू यू थ्रू ईमेल. सर जो डाटा है, यस सर, उसमें बहुत सारे डाटाज है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स हैं. कौन सा मतलब कोई सा भी डालो. इंट्रोडक्शन. Kindly add my email address as well. I have messaged my email ID in the chat box. Cool है.
Anyone else जिसको email करना है? I have sent, I have added Pratibha, I have added Anuj. Sejal, please give me your email address. सर मुझे भी कर दीजिए. Please अपना email address send करिए. Not waiting any further, I am sending the data. So I've sent it to the 3 people. Thanks, Pranay. Please do that analysis. Sir? Hello, sir, Pranay sir. Yep. Actually, I Anji. write down my mail ID. I write down my mail ID, but I can't send it. You Okay. can't send it. No. Now it's okay. I send it. कहाँ भेजा है आपने? नहीं सर, मैसेज में टाइप करके भेजा मैंने आपको. मैसेज लिख रहा मतलब व्हाट्सएप किया है, एसएमएस किया है? ये नहीं, इसी पे ही चैट पे ही जो है भेजा है चैट आपको. पे तो नहीं दिख रहा भाई. प्रकाश अंडरस्कोर पटवाल नाम से. अच्छा, प्रकाश वाले आईडी. या मिल गया वो आपको. हाँ जी, मिल गया. तुमसे मिलके is this thing so slow today? Good. So please take 10 minutes and quickly finish this for me. Then we discuss this. ठीक है? Sure. Pranay, Sure, sir. Pranay, हाँ जी. Pranay, right now it's not possible for me to do it. No worries. कोई बात नहीं. बाद में कर लेना. Okay, thanks, Pranay. But whenever you are doing it, try and reach out to me. Should you have some questions? उसी समय. Sure, Pranay, sure. प्रणय सर. हाँ जी. अभी क्या है, मैं मोबाइल पे हूँ, मैं कर नहीं पा रहा उसको अभी.
So Pranay, you have sent us 2 files, collection of data, and the another one I see over here is data of broken and causes. On either of them we can practice, or do you want us to do that on both of them or a particular one? Either. All right. Meanwhile, Pranay, yesterday I spoke with Naveen, and I had a question. So if we want to reach you out, is there any particular time window that we can reach you? Or, could you suggest some time? On WhatsApp, and if I'm not on a client assignment at that time, I'll respond. Okay. But please expect that it may be delayed. Rightly, I do understand that. और खास करके अभी तो ऐसी हालत है यार, I'm on a 18-hour work schedule. Okay. Every customer is desperate about projects, about improvements. तो अभी तो एक टाइम पे 4 कस्टमर हैंडल हो रहे हैं. It is So tough. right now, you are doing only the online classes, or do we have the classes running? I don't do classes at all. I don't take classes at all. Okay. You are the only batch that I do. Oh, I only do consulting assignments. so we are the lucky ones in that case. I am the lucky one. I wanted to interact with people यार. Bore हो जाता हूँ. Suddenly. Sir, I have. Yeah. Hi, Pari sir. Sir, I took the collection data, and there is a data sheet over there, and there is a. अपना screenshot. Yeah. Screenshot. Sir, actually, I did on a laptop. हाँ ठीक है ना. तो जो ये चैट का विंडो है, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, उसके वो जो लीव वाला बटन है, उसके बगल में वो स्क्वायर बॉक्स विद एन एरो है ना, उस पे क्लिक करो और फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना. एक मिनट, मुझे पहले तो एक बार टीम प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे. मैं टीम एक्चुअली मोबाइल पे खोला हुआ है. ओके. नहीं, टीम इसमें है नहीं, मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा. मैं ओके. हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे आप? जैसे मैंने ना उस डेटा कलेक्शन में डेटा का एक शीट है, उसमें एक जे कॉलम है आरपीसी का, मैंने वो पिक किया है. तो उसमें जो मीन आ रहा है, मतलब मैं एक बार ना पिक भेजती हूँ आपको. हाँ, that would also help. सर. हाँ जी. सर मैंने एक डेटा लिया पीटीपी कैप्ट वाला.
उसका मैंने किया है। ओके तो कैसे चेक कर सकते हैं सर हम? क्या मैं भेज दूं? सर मैंने भी आपको पिक भेजी है व्हाट्सएप पे ही, मीन और मीडियन की। तो सिर्फ एक वैल्यू निकालो आती, ओनली वन, बहुत सारा नहीं आना चाहिए, बस फर्स्ट वाले कॉलम में मीन निकाल लो सारे डेटा का, आरपीसी वाले डेटा का। आरपीसी वाले डेटा का मैंने मीन निकाला है सर। एक बार आप पिक्स देखिए। हाँ वही देख, जस्ट गिव मी 1 second, I will clear this up. This is the pic that राइट। ये जो है ना आती, ये जो बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ शो मी जस्ट वन वैल्यू। मीडियन में भी शो मी जस्ट वन वैल्यू, जैसे वो 371 आया ना, नीचे वाले डिलीट कर दो। ओके। मीन में भी फर्स्ट वाला जो है 366, उसके अलावा सारा कुछ डिलीट कर दो। ओके, ओनली फर्स्ट, राइट। हाँ करेक्ट। नाउ मतलब मुझे अब मोड नहीं समझ में आ रहा कि मैं मोड कैसे निकालूं। डोंट वरी, एक दूसरा एग्जांपल कर लेंगे। और एक डेटा पॉइंट गड़बड़ हो गया है आरती, इन द वंस दैट यू हैव पेस्टेड, वो जी हो गया है एट द 8th स्पेस, उसको चेंज कर लो। ओके। प्लीज आप द अदर पर्सन प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर लो। Pranay, how to share the screen? Can you tell me that once again? Let me show you. If you see this, if you are able to see the screen that I have right now, ऊपर में on your Teams वाला window, let me open Teams. ये दिख रहा है लीव का बटन। इसके बगल वाला ये जो बटन है स्क्वायर विथ अ क्रॉस, जब आप स्क्रीन शेयर करने लगेंगे तो ये एरो होगा इंस्टेड ऑफ क्रॉस, तो आप इस पे क्लिक करना एंड देन व्हाट एवर ऑप्शन इट शोज यू, पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेना। मनोज जी जो आपने भेजा है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट डेटा पॉइंट बनाइए मिनिमम, उसके बाद लिखिए क्वार्टाइल 1, उसके बाद लिखिए मीडियन, उसके बाद लिखिए क्वार्टाइल 3, उसके बाद लिखिए मैक्सिमम। और सिर्फ क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 करना है, 2 और 4 नहीं करना है। क्वार्टाइल 2 शुड बी इक्वल टू द मीडियन। ठीक है मनोज जी? Yes sir, I understand. But good effort, brother. Thank you. Pranay, I want to share my screen. Good. So I think I've taken Anuj has already taken over. Anuj, you're sharing your screen? No, Pratibha, yes. Yeah, Pratibha.
Where Can you see this? I've just pulled the detail for machine B, which I've selected from this data, Cool. and this is what I have calculated. ठीक है. So minimum is 0.45, quartile 1, 0.91, median is this, quartile 3 is this, maximum is this. Fair. No, but when I'm putting this for mean, I'm not able to get this. Why this is not Mean happening? formula mean नहीं होता है. Mean का formula average होता है. Equal to average. So whose screen do we have over here, Pranay? Okay, so this mean is this. This is fine. Calculated like that. Super. इसीलिए स्क्रीन शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिभा. 1 मिनट में सारा क्लियर हो. Yes, yes. मुझे दिख गया तो आई एम कंफर्टेबल नाउ कि अब आपको समझ में आ गया. Thank you. सर मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, प्लीज काइंडली से. श्योर. मिनिमम 84. 1Q लिखने की बजाय आप राइट दिस एज Q1. सॉरी सर. 1Q लिखने की बजाय आप इसको Q1 लिखो. ओके, Q1 राइट. मीडियन इज 371. 2Q नहीं लिखो, इसको Q3 लिखो. Pranay, I have a question. How do I calculate mode in this? Sure, I'll tell you. काउंट लगाना पड़ेगा. तो काउंटिव का फॉर्मूला लगा के हर डेटा एलिमेंट को काउंट कर लो. ओके. Okay. Can you तो आरती इसको Q1 और Q3 कर दो और एक n निकाल लो, नंबर ऑफ डेटा. सर पूरे वो तो मैंने कर दिया. अब नाउ वी गोइंग फॉर काउंट, राइट? काउंट. जैसे अब ये डेटा है, इफ आई डोंट नो हाउ टू डू इट, सो मैंने सिंपली यहाँ काउंटिफ लगा लेना है. COUNT if countif, this is the range, comma, this is the data. Sorry, equal to count if, ये ढूंढ ले, comma, bracket बंद. Now it is counted for me and told me that 200 has is evidenced 8 times, 246 is evidenced 8 times, 222 evidenced 16 times. कोई 20 है. Let's say if there is something, there is a 245, there is a 24. So मुझे लग रहा है highest number of occurrence 24 का ही आ रहा है. सर एक बार दोबारा बताएंगे हाउ टू मेंशन द काउंट प्लीज. Let me take another data. Let's say I have taken total breakage. Copy. ओके. You guys can see my screen well. यस सर. तो मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज सिलेक्ट किया कहाँ काउंट इफ करना है, ओके. कॉमा क्या काउंट करना है. तो मैंने कहा भाई ये पहला वाला डेटा पॉइंट काउंट करना है, सो दैट व्हेन आई विल पुल इट, वो पहले वाले में पहला डेटा काउंट कर रहा है, दूसरे वाले में वो 9.90 का. अब इसमें आपको चेक करना है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है. तो मुझे दिख रहा है 8 is the highest value I am getting. देख लेना एक बार थोड़ी और घूम फिर के. It seems that 8 is the most times that I see. तो जो भी 8 आ रहा है, that becomes your mode. Yeah. Equal to mode, कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? Most frequently occurring or repetitive values in an array or range of data. Any? Oh, this is nice. ये तो हो रहा है. What is this? Number of frequency. Yeah. ये तो काम कर रहा है. I got 24 numbers who repeated 4 times.
Sir, can I share my screen? और ये मोड वाला फॉर्मूला डायरेक्टली काम कर रहा है, इक्वल टू मोड. Yeah. Please check, sir. ये क्या है? अच्छा, मिनिमम क्वार्टाइल 1, मीडियन क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम कुल, और n भी निकाल दो एक बार. n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. नहीं चाहिए, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं चाहिए. काउंट ए डेटा, काउंट ए, काउंट नहीं, काउंट ए. डेटा रेंज सेलेक्ट कर लो, -1 कर देना. अच्छा ठीक है, फिर आपके केस में तो हो गया. ठीक है, गुड है, हो गया. दिस इज योर n और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. This is mode. This is the numbers which is repeated 4 times. गुड है. या एक और फॉर्मूला लगा के देख लो, इक्वल टू मोड, इक्वल टू मोड, ब्रैकेट ओपन, और डेटा सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट खोल के डेटा सेलेक्ट कर लो. करेक्ट. मार दे एंटर. जरूरत ही नहीं है डबल क्लिक करने की, जो एक डेटा पॉइंट आया वही काफी है. वही है मोड आपका. अब हम सर, हाँ जी. एक सवाल है यहाँ पर. ये जो बोर्ड निकाल रहे हैं ना, पर ये जो अपना 459 निकला है बोर्ड, तो मैं जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर अभी मेरा मैं एक वैल्यू और देता हूँ 454 जस्ट उसके नीचे यहाँ पर. तो हम लोग सिर्फ एक ही को मोड मानेंगे या हम इसको 2 मोड मान सकते हैं? अगर अकरेंस दोनों का सेम है, लेट्स से कि 459 भी 10 बार आ रहा है और 454 भी 10 बार आ रहा है, तो 2 मोड हो जाएगा मेरे डेटा में, कोई दिक्कत नहीं है. मोड तो 10 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग होना चाहिए, बस. दैट्स द लॉजिक, दैट्स द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर. क्लियर. चलें आगे बढ़े एवरीवन. Yes, sir. Should we start? Yes, sir. Okay. So जिस तरह से हमने मिनिमम, मैक्सिमम, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 निकाला, उसी तरीके से 2 और वैल्यूज हैं. एक जिसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं. यहां अगर आप देखो तो हमने ये सारा कैलकुलेशन किया था. देयर आर 2 मोर वैल्यूज. एक जिसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, विच इज नथिंग बट क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1. क्लियर है? सर दोबारा समझना चाहेंगे. इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? क्वार्टाइल 3 सो इक्वल टू क्वार्टाइल 3 का जो वैल्यू निकला है माइनस जो क्वार्टाइल 1 का वैल्यू निकला है. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर सर. क्लियर सर. सर इंटर क्वार्टाइल हम निकालते क्यों? हाँ, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीच के 50% डेटा का
क्वार्टाइल 1 क्या हुआ? 25th पोजीशन। क्वार्टाइल 3 क्या हुआ? 75th पोजीशन। इन दोनों के बीच में कितना वेरिएशन है, यही हुआ IQR। बिल्कुल करेक्ट? राइट। इसका फॉर्मूला सर एक बार दोबारा बताएंगे? Q3 minus Q1। There is another one referred to as stability factor, which is nothing but Q1 divided by Q3. यूसेज बताओ मुझे, Q1 by Q3 से क्या समझ में आ रहा है? इंटरक्वार्टाइल रेंज से क्या निकल के आया? सो यू हैव कोटेड टू योर लीडर दैट मेरे क्वालिटी स्कोर में, मेरे प्रोडक्शन में 54 इज माय IQR। मतलब क्या बताना क्या चाह रहे हो? बताना क्या चाह रहे हो? गाइस, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सर रिपीट करिए। सो ये प्रोडक्शन का डेटा था जिसको आपने इस्तेमाल किया था। राइट। पीपल जो दो सिस्टम्स पे लॉग्ड इन है ना, प्लीज कम से कम एक सिस्टम को बिल्कुल उसका साउंड और उसका आउटगोइंग साउंड दोनों बंद कर दो, बिकॉज वो एको हो रहा है। सो नाउ यू हैव calculated several things, and one of these things is these two values. So आप सोचो कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में इसको ऐड किया है और आपका लीडर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बता क्या रहा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्यों जानूं मैं? What does this 54 signify? मतलब क्या है 54? IQR का मतलब ये है कि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के बीच में कितना वेरिएशन है। यस, क्वार्टाइल 3 का वैल्यू 299 और क्वार्टाइल 1 का वैल्यू 245, इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। करेक्ट, डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। तो बीच के 50% डेटा में कितना वेरिएशन है, दिस इज व्हाट IQR इज टेलिंग यू। ओके सर। और जरा सोच के देखो, हम ये मान सकते हैं कि आपके डेटा के टॉप में, आपके डेटा के बॉटम में कुछ स्पेशल डेटा होता है, कभी कभार बहुत वेरिएशन हो जाता है, बट बीच का 50% इज कंसिडर्ड अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रोसेस वेरिएशन। तो अगर आपके बीच के 50% में 54 किलोज का वेरिएशन है प्रोडक्शन में, तो साहब बहुत बड़ी समस्या है। नो, आइडियली अनुज, जब मैं तुम्हारी टीम का क्वालिटी का डेटा देखना चाहूंगा, मुझे चाहिए कि बीच के 50% में तो भैया नहीं के बराबर डिफरेंस हो क्वालिटी में। करेक्ट ना? जितना कम वेरिएशन होगा किसी भी प्रोसेस में, वो उतना अच्छा माना जाता है। अच्छा, मतलब इंटरक्वार्टाइल में हमने ये देखा है कि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 में क्या क्या वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है, वो हम चेक कर रहे हैं IQR में। एब्सोल्युटली। ओके, तो से फॉर एन एग्जांपल प्रणय, जो हम डेटा आपके शीट पे देख रहे हैं प्रोडक्शन किलो का, तो उसमें हम IQ3 निकाल रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 54। So would it be considered on a positive side or a negative side? आपसे पूछ रहा हूं, आप फैक्ट्री के मैनेजर हो, आपको कितना वेरिएशन चलेगा प्रोडक्शन में? मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा है भाई। अगर आप देखो मिनिमम मैक्सिमम से शुरू करते हैं, तो किसी दिन आप 200 किलो बिस्किट बनाते हो,
और किसी दिन आप 365 किलोग्राम बिस्किट बनाते हो, भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेरे लिए अगर दिस इज नॉट एनीथिंग टू डू विथ भसड़ इन दी कंपनी कि भैया सेल्स ही नहीं हो रही है तो करेंगे क्या, बट दिस इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में सेल्स की तो कोई भसड़ नहीं है भाई। तो इतना ज्यादा वेरिएशन कि किसी दिन आप 200 किलो भी बना रहे हो, किसी दिन आप 299 किलो भी बना रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इंटर क्वार्टाइल रेंज इतना हाई होना मेरे लिए बहुत ट्रबलसम एलिमेंट है। यू गाइस विद मी? यस सर, क्लियर है। कहना मतलब ये कि जो भी हमारा डाटा है, जो भी हम बना रहे हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन है, चाहे हम डायमेंशन की बात करें, उनमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये जो बता रहे हैं, बिल्कुल जितना कम होगा वेरिएशन भाई उतना बढ़िया है मेरे लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये भी मतलब यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो है, अगर सुबह से लेकर इवनिंग तक बात करें सर, कि हमारा सुबह और शाम में कितना वेरिएशन हुआ, हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। And Pranay, what does SF stand for? स्टेबिलिटी फैक्टर। Stability factor. इस तरीके से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज के थ्रू बीच के 50% का वेरिएशन मेजर किया। सेम इंडेक्स है स्टेबिलिटी फैक्टर भी, वहां आप डिफरेंस निकाल रहे थे, यहां हम रेशियो निकाल रहे हैं। Okay. वहां हमने क्या किया था, Q3 माइनस Q1, यहां हम क्या कर रहे हैं, Q1 डिवाइडेड बाय Q3। तो इंडेक्स तो सेम है, वी आर स्टिल स्टडिंग वेरिएशन। अगर बिल्कुल वेरिएशन नहीं हो तो माय स्टेबिलिटी फैक्टर विल बी क्लोज टू 1। तो लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं कि वेरिएशन ठीक है? जैसे जो डेटा निकाला उसमें जो वेरिएशन है वो 192.95 समथिंग है जो मैंने निकाला। वेरिएशन का कौन सा इंडेक्स 192.95 है? ये जो आरपीसी का निकाला था मैंने, उसी मोड पे ये 192 आ रहा है। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं भी वो डेटा खोल रहा हूं। तो मतलब वो वेरिएशन गुड है या मतलब राइट वे में जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2 मिनट्स। आपको ये सोचना पड़ेगा दैट एट द एंड ऑफ द डे आरपीसी था ना? हाँ, आरपीसी। तो मेरा मिनिमम आरपीसी कितना है? इक्वल टू मिन मेरा क्वार्टाइल 1 आरपीसी का मतलब राइट पार्टी कॉन्टैक्ट। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम अ कलेक्शंस कंपनी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आई शुड बी एबल टू रीच आउट टू द राइट पीपल। करेक्ट एवरीवन? दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू मी। तो अगर मेरी ये हालत है दैट 25% टाइम I have been able to reach out to 84 people to 269 people. कितना ज्यादा वेरिएशन है, दिख रहा है आपको मिनिमम से क्वार्टाइल 1 में? मिनिमम से क्वार्टाइल 1, Right from 84 to 269. राइट, एग्जैक्टली। नेक्स्ट 25% का वेरिएशन देखो, 269 से 371। नेक्स्ट 25%
371 टू 462 डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। राइट सर। तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटीज के अनुसार सोचना पड़ेगा, बिजनेस रियलिटीज के अनुसार सोचना पड़ेगा कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। बेस्ट केस क्या है? 0 वेरिएशन, नो वेरिएशन एट ऑल। ओके। आप ये सोचो कि अगर आपके बिजनेस की ये हालत है कि किसी दिन 681 लोगों से भी कांटेक्ट हो जाता है और किसी केस में 84 लोगों से कांटेक्ट हो पाता है, तो जिस बेचारे को 84 कांटेक्ट वाला डेटा मिला और ये इंटेंशनली बदमाशी नहीं कर रहा है, ये या तो इंटेंशनली बदमाशी कर रहा है कि ट्राई करता है और फाइनली लिख देता है कि नो आरपीसी। राइट। मैं तो स्टडी करना चाहूंगा कौन है ये। जो डेटा प्रोवाइडर है, जो मेरी टीम है जो डेटा कलेक्शंस का डेटा प्रोवाइड करती है, उनको बताऊंगा ना कि क्या क्या गंद मचाया हुआ है। माय टीम इज अनेबल टू कांटेक्ट पीपल, देयर कुड बी ओनली 2 रीजंस, या तो मेरी टीम बदमाशी कर रही है और दैट योर डेटा इज सो मेस्ड अप, पुराना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है लोगों का। तो जब तक आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। दैट्स द होल आइडिया। ओके। Clear everyone? Right. Yes, Pune. Are we good so far? Are we okay with the speed? Are we okay with the examples that we are doing? अभी तक clarity है बिल्कुल? Definitely, sir. What did you mean by SF5? Significant factor. Sorry, you were saying something. Stability factor. तो अब हम 2 चीजें कर रहे थे बीच के 50% डेटा का वेरिएशन स्टडी करने के लिए। एक तो हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाला विच इज नथिंग बट Q3 माइनस द Q1। इसी का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि मैं स्टेबिलिटी फैक्टर निकालूंगा, माइनस करने की बजाय डिवाइड कर रहा हूं। बेस्ट केस ये होगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होगा जब Q1 और Q3 में कोई वेरिएशन ना हो। अज्यूम अ सिचुएशन दैट जो मेरा Q1 है वही मेरा Q3 है। ओके। क्या हुआ? इंटरक्वार्टाइल रेंज 0, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया? 1। बेस्ट कंडीशन तो यही है। इन केस ऑफ नो वेरिएशन माय स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1। जितना आपका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 से दूर जा रहा है, इसका मतलब आपके डेटा के Q1 Q3 में उतना ज्यादा डिफरेंस है, एंड दैट इज कंसिडर्ड डेंजरस। ओके। Someone was asking something. Yes, this is Pratibha. Sir, I have a question. You can repeat what you just said about stability factor. I just messed around with the data a little bit. So stability factor, best case, what is the best situation to be in? Best situation to be in is that quartile 1 और quartile 3 में कोई difference ही नहीं है. In that case, my stability factor is equal to 1. तो जब कभी भी आप stability factor study कर रहे हो, you should always study whether stability factor is close to 1 or not. Closer to 1 will mean less variation. Farther away from 1 will mean very high variation. Are you guys? Sure. Thank you. सर Please ask. सवाल है मेरा यहाँ पर सर आपसे। हेलो जी पूछिए। हमें इसको प्रोडक्ट फ्लो सर। हाँ जी। मैं ही करता, मेरा जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मिनिमम Q1, मीडियन Q3, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रोडक्शन के रूप में अगर इसको देखूँ, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब Q2 Q मेरा प्रोडक्शन, मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है। ओके,
देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साल के क्वार्टर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहला क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है, ये आपने पूरे साल का डेटा, पूरे महीने का डेटा या जो भी डेटा आपने लिया है आपने उसको 4 बक्सों में टूटा है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय थिंकिंग दैट इट इज क्वार्टरली डेटा। एक डेटा को हमने 4 क्वार्टर में 25% के 4 क्वार्टर में तोड़ दिया है। ओके सर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर, बट दरअसल मेरा एक सवाल है, मैं अगर दिन की बात करूँ 24 आवर्स की बात करूँ, मैंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है सेम मशीन पे, एक एग्जांपल के लिए, तो मैं बोलता हूँ मेरा जो फर्स्ट जो मेरा आवर्स थे क्वार्टर, मतलब अगर मैं क्वार्टरली तोड़ूं उनको, मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, मैंने साइकिल टाइम कम करा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। उस केस में यहाँ पर मेरा ये जो मेरा जो है ना स्टेबिलिटी फैक्टर है, ये सही रहेगा, बढ़ना घटना क्या रहेगा उसमें? तो आपने जब बढ़ा लिया है, तो जब आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे उस समय अगर वेरिएशन हाई है तो होगा, बिकॉज आप प्रयास कर रहे हैं कम से ज्यादा की तरफ मूव करना। लेकिन मैं कब मानूं कि आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है? जब आप फाइनली सेटल कर गए हैं, सुधार कर दिया है आपने, तो मुझे फिर स्टेबिलिटी फैक्टर तो कम चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है सर।